Hello and welcome to Edward Swing. Students, this is Zahid Khan and I am going to teach you environmental ecology, in which we will cover biodiversity, wildlife, and climate change. Okay, without wasting any time, let's get started. Environment and its components. The environment is defined as the sum total of living, non living components, influences, and events surrounding an organism. Okay, चलो हम यहाँ पे जानेंगे एक्चुअली what constitutes environment. As already discussed, the environment is made up of the living and non-living components. The living components, also called biotic components. Biotic components. The biotic or living components include the plants, animals, birds, the living beings, microbes that constitute living components. Now we have the non-living components are the abiotic components. The example of the non-living components are the soil, okay, sunlight, pH, salinity, okay. So these are the non-living or abiotic components. इनको हम non-living components और abiotic components भी कहते हैं. तो इन चीज़ों का ये जो चीज़ें हैं बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स ये डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं एक ऑर्गेनिज्म पे. दे डायरेक्टली इन्फ्लुएंस एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो इन चीज़ों का बना होता है एनवायरमेंट. ठीक है. तो एनवायरमेंट इज नथिंग बट द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. वी कैन कॉल इट द सराउंडिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. इट डायरेक्टली इन्फ्लुएंसेस एन ऑर्गेनिज्म. ओके. नाउ all the organisms from virus to the man are obligatory dependent on other organisms and environment for food, energy, water, oxygen and the shelter. इसका मतलब ये हुआ कि हर कोई लिविंग बीइंग और द ऑर्गेनिज्म ये डिपेंडेंट है दूसरे किसी ऑर्गेनिज्म पे फॉर इट्स फूड, फॉर इट्स शेल्टर, फॉर एनर्जी. ओके. फॉर एग्जांपल, we human beings, we are directly or indirectly dependent on plants, okay, and animals. We consume both plants and the animals. Similarly, other organisms, they are also dependent on another organisms for their survival, for their shelter, for their food. Okay, got it? यहाँ तक clear है? तो हाँ, अब देखते हैं the relationship and the interaction between the organism and the environment are highly complex. इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा एनवायरमेंट, देखिए एनवायरमेंट में क्या होता है कि रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स में एक रिलेशन होता है एंड इंटरेक्शन होता है इन ऑर्गेनिजम्स में. ठीक है. मैंने अभी कहा कि एक इंटरेक्शन जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स में एक इंटरेक्शन है क्योंकि जो प्लांट्स है दे आर कंज्यूम्ड बाय द एनिमल्स. ठीक है. एनिमल्स आर कंज्यूम्ड बाय द, ठीक है, जो फ्लैश ईटिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो कंज्यूम करते हैं बाकी एनिमल्स को. ठीक है. एंड देयर इज ए इंटरेक्शन. ओके. देयर इज ए इंटरेक्शन बिटवीन. अब देखिए द रिलेशनशिप यहाँ पे एनवायरमेंट में जो है एक हाईली कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है. इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप देखेंगे एनवायरमेंट इज एवर चेंजिंग और द डायनामिक. ठीक है. ये डायनामिक है, एनवायरमेंट डायनामिक है और इसी के अकॉर्डिंगली विद द चेंजिंग एनवायरमेंट एन ऑर्गेनिज्म modifies itself or adopts itself for its survival. ठीक है. तो अगर हम इकोलॉजिस्ट्स को देखेंगे, इकोलॉजिस्ट्स दे स्टडी द इकोलॉजी एंड द एनवायरमेंट और द एनवायरमेंटलिस्ट्स. ठीक है. इकोलॉजिस्ट स्टडी करते हैं एक बिहेवियर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. ठीक है. तो इसको समझना बहुत ही कॉम्प्लेक्स एक मैटर है क्योंकि एक बिहेवियर को समझने के लिए बहुत टाइम लगता है एक इकोलॉजिस्ट को. इट इज ए कॉम्प्लेक्स. ठीक है. द रिलेशनशिप and the interaction between organism and the environment is highly complex because the environment is ever changing, it is dynamic. So organism has to evolve itself with the changing environment. ठीक है. That is the reason why it is very highly complex. It comprises both living and non-living components, that's बायोटिक एंड एबायोटिक. एज ऑलरेडी डिस्कस्ड, अभी मैंने बोला जो हमारा एनवायरमेंट है ये दो चीज़ों का बना होता है. एक तो लिविंग
दैट इज बायोटिक, लाइक प्लांट्स है, एनिमल्स है, ठीक है, वायरसेस है या बैक्टीरिया है या और माइक्रोब्स है, तो दे कॉन्स्टिट्यूट लिविंग और बायोटिक पार्ट. And the non-living component, they include salinity is there, water is there, wind is there, okay, pH is there, okay. So soil is there. Those components are called abiotic components of an environment. ठीक है. Okay, biotic and abiotic components of the environment. Biotic are living components, abiotic are non-living components. अब देखिए यहाँ पे the biotic components include the protists are there, plants है यहाँ पे, animals are there, okay, bacteria and fungus. And इनको हम कहते हैं biotic components. अब देखिए abiotic components. Abiotic components are non-living things, include water है यहाँ पे, soil is there, light है यहाँ पे, minerals and air. ठीक है, the components of the environment, the biotic and the abiotic components. ठीक है, गॉट इट, यहां तक क्लियर है. ओके ओके, लेट अस डिस्कस इकोलॉजी. इकोलॉजी का पहले डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है. इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स विथ ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट. साइंटिफिकली व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिजम्स एंड विद देयर एनवायरमेंट, वी कॉल इट एज इकोलॉजी. ठीक है, उस स्टडी का क्या नाम रखते हैं हम, इकोलॉजी. इकोलॉजी में क्या देखते हैं, रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स ईच अदर एंड विद देयर एनवायरमेंट. फॉर एग्जांपल, प्रोड्यूसर्स आर देयर. प्रोड्यूसर्स, इन पे डिपेंड करते हैं कौन से, हर्बिवोर्स. हर्बिवोर्स पे को कंज्यूम करते हैं कौन करते हैं, कार्निवोर्स. तो इनमें एक रिलेशनशिप है. ठीक है, प्रोड्यूसर्स, हर्बिवोर्स एंड द कार्निवोर्स, इनमें एक रिलेशनशिप है. ठीक, और इनका रिलेशनशिप एनवायरमेंट के साथ क्या है. तो साइंटिफिकली व्हेन वी स्टडी द रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड विद देयर एनवायरमेंट, तो उसको हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी. इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ, एक्चुअली इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द, ठीक है, which deals with the relationship with living organisms and their environment. Got it? ठीक है. Ecology, it deals with the way in which organisms are molded by their environment, how they can make use of environmental resources including energy flow and mineral recycling. अब देखिए यहाँ पे एक स्टडी होता है इकोलॉजी में कि how an organism molds itself, how it adopts with the changing environment. ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म जब एनवायरमेंट चेंज होता है, एक ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट करता है, ठीक, डिफरेंट फीचर्स से टू फॉर इट इज सर्वाइवल. ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे कि जो डेजर्ट्स होते हैं, डेजर्ट्स में वाटर स्कैर्सिटी होती है, बहुत ही किल्लत होती है वहाँ पे पानी की. आप देखोगे वहाँ पे भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं, लाइक कैंगारो रैट. कैंगारो रैट Kangaroo rat never drinks water in his entire life. ठीक है, इसी तरीके से अगर आप देखोगे कि कैक्टस है, कैक्टस मॉडिफिकेशन लाता है अपने आप को, उसमें पत्ते नहीं होते, उसमें स्पाइन्स होती है, ठीक, टू रिड्यूस द वाटर लॉस. ठीक है, इसी तरीके से हर कोई ऑर्गेनिज्म अपने आप को अडॉप्ट इवॉल्व करता है विद द चेंजिंग एनवायरनमेंट. ठीक, और फिर वहाँ के जो रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइज करता है एंड एनर्जी, इंक्लूडिंग द एनर्जी फ्लो एंड द मिनरल रिसाइकलिंग. इस चीज का मतलब क्या होता है, ठीक है, मिनरल रिसाइकलिंग होती है एक एनवायरनमेंट में, या व्हेन वी स्टडी द इकोलॉजी देयर इज अ मिनरल रिसाइकलिंग. मिनरल रिसाइकलिंग का मतलब क्या होता है, जब एक ऑर्गेनिज्म की डेथ हो जाती है तो उसका जो डेड बॉडी है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट होती है. डिकम्पोजिशन के बाद जो भी उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट है, कार्बन है, ठीक है, फास्फोरस है, तो ये अगेन रिलीज हो जाता है एनवायरनमेंट में. कार्बन जो है वो कार्बन साइकिल
से रिलीज हो जाता है एनवायरमेंट और फिर से इसको रीयूज किया जाता है। फास्फोरस गैस गेट्स एडेड टू द सॉइल, अगेन इट इज यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स। तो इसी को कहते हैं मिनरल रिसाइकलिंग, ठीक है। एक तो इसमें क्या होता है, एनवायरमेंट अपने आप को मोल्ड करता है विद द चेंजिंग एनवायरमेंट। सेकंड थिंग, इट यूटिलाइज द मिनरल रिसोर्सेज, ठीक है। एनर्जी फ्लो हो जाता है। एनर्जी फ्लो कैसे हो जाता है, जैसे यहाँ पे प्रोड्यूसर्स, मैंने कहा प्रोड्यूसर्स जो है इन पर डिपेंडेंट है हर्बीवोर्स, यहाँ से एनर्जी फ्लो हो गई हर्बीवोर्स में, हर्बीवोर्स से फ्लो हो गई कार्निवोर्स में। देयर इज एनर्जी फ्लो एंड द मिनरल रिसाइकलिंग। जब ये डेड मतलब डिकेइंग हो जाता है इनको, तो यहाँ से जो मिनरल्स होते हैं वो फिर से रिसाइकलिंग होता है उनका एनवायरमेंट में, ठीक है। गॉट इट? ओके ओके, let us discuss the levels of organization in an ecology. इकोलॉजी में किस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन होता है ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है। पहले यहां पे देखिए, ऑर्गेनिजम्स देयर, ठीक है। एक इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है अप टू द बायोस्फीयर तक ऑर्गेनाइजेशन है। एक ये हायरार्की है। हायरार्की मतलब दिस इज लाइक अ लेडर, ठीक है। जैसे लैडर में स्टेप्स होते हैं, ऐसे ही एक ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये स्टार्ट होता है फर्स्ट स्टेप से, जिसको हम ऑर्गेनिज्म कहते हैं। यहाँ पे हम ऑर्गेनिज्म, और जो लैडर का टॉप हिस्सा होता है दैट्स कॉल्ड बायोस्फीयर, ठीक। स्टेप बाय स्टेप ये होता है। इसी तरीके से ये हायरार्की होती है, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप एक क्रोनोलॉजी में होता है, ठीक। देखिए, अगर हम इस लैडर का सबसे लास्ट वाला स्टेप और पहला वाला स्टेप देखेंगे, ये एक ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होता है अप टू द बायोस्फीयर। ऑर्गेनिज्म एक इंडिविजुअल लेवल पे होता है, ठीक। यही ऑर्गेनिज्म पॉपुलेशन बनाता है। क्या बनाता है? जब बहुत सारे इंडिविजुअल्स सेम स्पीशी दैट ऑक्यूपाई अ पर्टिकुलर प्लेस एट स्पेसिफिक टाइम इज कॉल्ड पॉपुलेशन। ये एक पॉपुलेशन बनाती है, ठीक है। और यही पॉपुलेशन, जब बहुत सारी पॉपुलेशंस मिलती हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा डियर है, ठीक है, एक ही पॉपुलेशन है। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ट्रीज है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे डियर है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लाइक वी हैव, ठीक है, शीप है, गोट है, ठीक है, इंडिविजुअल्स ऑर्गेनिजम्स है या ह्यूमन बींग्स है। तो डिफरेंट पॉपुलेशन जब मिलती है, ये एक कम्युनिटी बनाता है। और एक कम्युनिटी जो है, जब बहुत सारी कम्युनिटीज आपस में मिलती है, it forms the ecosystem and ecosystem ultimately forms the biosphere, ठीक है। अब बायोस्फीयर क्या है? बायोस्फीयर इज अ थिन जोन ऑफ द अर्थ दैट सपोर्ट्स लाइफ। बायोस्फीयर वो जोन है जहां पे लाइफ एग्जिस्ट होती है ऑन दिस प्लेनेट, ठीक है। होल प्लेनेट पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती है। एक स्पेसिफिक पार्ट है, एक जोन है जिसको हम बायोस्फीयर कहते हैं, और दैट सपोर्ट्स द लाइफ। फॉर एग्जांपल 3 पार्ट्स में ये हमारा जो ब्लू प्लैनेट, द अर्थ, द जाइंट इकोसिस्टम, इट इज डिवाइडेड इनटू द 3 पार्ट्स। नंबर 1 लिथोस्फीयर इज देयर, ठीक है। लिथोस्फीयर कौन सा है? लैंड और द सरफेस। जो टेरेस्ट्रियल पोर्शन है हमारा, उसको लिथोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। और हाइड्रोस्फीयर वो है जहां पे हमारा वाटर एग्जिस्ट होते हैं, लार्जर वाटर बॉडीज, बिगर वाटर बॉडीज, लाइक वी हैव पैसिफिक ओशन, ओके, इंडियन ओशन इज देयर, अटलांटिक ओशन, ये कहलाता है हाइड्रोस्फीयर, जहाँ पे वाटर है। एंड द एटमॉस्फेयर जो है दैट सराउंड्स लाइक द एयर सराउंड्स लाइक एन एनवलप, तो उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो एटमॉस्फेयर भी एक जोन है, ठीक है। एक जोन है जहां पे तीनों लेयर्स, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर, एक ही जगह मर्ज होते हैं, एंड दैट जोन इज कॉल्ड बायोस्फीयर। एंड दिस इज द ओनली जोन दैट सपोर्ट्स लाइफ। और इस जोन को क्या कहते हैं हम? इसी जोन को हम बायोस्फीयर कहते हैं, ठीक है। गॉट इट? ये हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? एक इंडिविजुअल से स्टार्ट होता है अप टू द बायोस्फीयर, ठीक है। और बायोस्फीयर में क्या है? एक जोन वो है जिसको हम हाँ, बायोस्फीयर एक जोन है जहाँ जो लाइफ एग्जिस्ट करता है, जो लाइफ सपोर्ट करता है ऑन दिस प्लेनेट। गॉट इट? ये था हमारा ऑर्गेनाइजेशन।